نہیں نہیں نہیں، آپ کسی بندے کو ایسے کو اگر نبی مانتے ہیں جس کو میں نہیں مانتا، میں آپ سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ تمہارے نبی کی یہ بات ہے، مطلب آگ تمہاری غلام ہے، تو تم چھلانگ لگا کے دکھاؤ۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ جہالت کی بات ہے، جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو یہ جاہلانہ مطالبہ ہے۔ تو پھر میں جاہل ہوا نا، یہ مطالبہ جاہلانہ کرنے والا جاہل ہوا نا، اس طرح کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ہاں، یہ فتویٰ لکھوا لیں، آپ کو اصل جھوٹا پکڑوائیں گے، ایسا پکڑوائیں گے کہ جتنے آپ ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں سارے درے اس کو لگیں گے۔ وہ بھی پیش کر چکے ہیں کیا جو مربی آگ وہ لگی کیا پیش تھی، اور وہ جو ایک مربی کا واقعہ اب ادھر ابو رافع بھائی تھے، انہوں نے وہ بیان کیا تھا جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں نا، شاید آپ وہی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ آگ لگی تھی مربی، تو اس نے کہا تھا کہ یہ آگ رک گئی تھی۔ تکے نہ مارو، تکے نہ مارو، شاید وہ بات کرنے لگے ہو، شاید وہ بات کرنے لگے ہو، تکے نہ مارو۔ قیاس ہے میرا۔ آپ پہلے جاہل کہلوائیں، اس پہ جہالت کا فتویٰ لگوائیں، پھر میں بندہ بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ جب عبداللہ آتم سے مرزا صاحب کا مناظرہ ہو رہا تھا امرتسر میں، تو انہوں نے کہا، کرسچنوں نے کہا بھئی 5 دن ہو گئے آپ نے رولا ڈالا ہوا ہے، نشان نشان نشان، اے بندے پہ جانا نشان دکھاؤ، اگاں وہ دکھاؤ نشان ان کو۔ یہ ایک اندھا ہے، ایک گونگا ہے، ایک لنگڑا ہے۔ اندھے کی آنکھیں صحیح کر دکھا دو، لنگڑے کی ٹانگ صحیح کر کے دکھا دو، گونگے کو بولنا سکھا دو۔ اگر نشان آپ کوئی دکھا سکتے ہیں، مسیح ہونے کا دعویٰ بھی ہے، اور مسیح ابن مریم تو مردے زندہ کر لیا کرتے تھے، تو آپ کر کے دکھائیں۔ آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم میں سے سچا مذہب اس کا ہے جس کے پاس کوئی زندہ نشان ہے، یہ مرزا صاحب بات کر رہے تھے۔ یہ فکرہ جنگ مقدس کھولیں گے تو وہاں پر جا بجا مرزا صاحب نے اپنی ٹرنوں میں استعمال کیا ہوا ہے۔ ہم میں سے سچا مذہب اس کا ہے جس کے پاس کوئی زندہ نشان موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا لو جی کرو جی نشان دکھاؤ جی۔ مرزا صاحب نے کہا او بھائی تمہارے مسیح علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ میرے مرید اگر پہاڑ کو کہیں گے نا اٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے تو چلا جائے گا، تم پہاڑ ہلا کے دکھاؤ۔ سمجھ آئی بات؟ کوئی نہیں۔ جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی آگ آپ کی غلام ہے، بقول آپ کے مرزا صاحب کے، تو آپ چھلانگ لگا کے دکھاؤ۔ یہی مطالبہ تو مرزا صاحب ان سے کر رہے تھے کہ پہاڑ آپ کا غلام ہے، اس کو اٹھا کے کہو دوسری جگہ چلا جائے، ہل کے کہو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جائے، کر کے دکھاؤ اس کو۔ اگر میں جاہلانہ مطالبہ کر رہا ہوں اور میں جاہل ہوں تو اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو عیسائیوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ مسیح علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرے مرید اگر پہاڑ کو کہیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ وہ چلا جائے گا، کر کے دکھاؤ تم۔ اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں نہ ہوتا، بس لڑنا ہی صرف آتا ہے۔ حالانکہ یہ لڑائی والی بات ہی کوئی نہیں جو آپ کے درمیان میں بات چل رہی ہے، سمپل بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آگ میں ہم چھلانگ کیوں لگائیں؟ پھر آپ ان سے پوچھیں کہ غلام ہونے کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے۔ جو وہ معنی اور مفہوم بیان کریں گے، جو طویل کریں گے، اس کی چس لیں۔ ایک بندہ نیچے میسج لکھ رہا تھا روحانی آگ غلام ہے، روحانی طور پر آگ غلام ہے، روحانی طور پر۔ انہوں نے آپ کو ایسا لطیفہ سنانا تھا کہ آپ کی ویڈیو بن جانی تھی۔ آپ ان سے یہ سوال تو کرتے کہ بھئی مرزا صاحب نے جو کہا ہے کہ آگ میرے غلاموں کی بھی غلام، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کود جائیں آپ کو چھو نہیں سکتی، یا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ خود بیان کر دیں۔ آپ کا کلام ہے، آپ کے مرزا صاحب کا کلام ہے، جو بھی آپ بیان کریں گے ہم سن لیں گے۔ سناؤ تو صحیح نا، آگ آپ کی غلام کیسے ہے، کن معنوں میں غلام ہے، وہ معنی بیان کر دیں، پوچھ کے دیکھو، دیکھنا کیسا کیسا لطیفہ سنائیں گے۔ پر کی کہنا نے کتے رکھا میں اپنا آپ، جو ہی میں آتا ہوں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ پہلے بھی سویرے یہاں پہ جھمکا لگا ہوا تھا، جیسے میں آیا ہوں تتر ہو گئے۔ نذیر بھائی بات یہ ہے کہ پیر اسکانی بھائی ہمیں کچھ کرنے دیں تو پھر نہیں تو چھاتی تان کے خود سامنے کھڑے ہوتے، آؤ میرے سے بات کرو، مجھے بتاؤ، مجھے حوالہ دو، میں بات کروں۔ نہیں، اس بات میں آپ کی اور پیر اسکانی بھائی کی بات میں کوئی اختلاف تھا نہیں۔
आप इसको ठंडे दिल से रिजॉल्व करते ना तो इख्तलाफ था ही नहीं। आप उनसे पूछते भाई ये मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि आग मेरे गुलामों की गुलाम है, इसका मानी है क्या, आप बताएं थोड़ा सा। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो मिर्जा साहब ये तो एक जो उसको कह लें जुज़वी सवाल ये भी पैदा होता है कि जो मिर्जा साहब उसको पेशावरी को कह रहे थे, सिकंदर पेशावरी उसका नाम था, जो गुस्ले आतिश किया करता था ना, उसको जो मिर्जा साहब कह रहे थे कि तुम कादियान आओ, यहाँ मेरे सामने आके आग में जाओ, बाहर नहीं निकल सकोगे। सिंपल है। मिर्जा साहब ने फाड़ के उन्हें बन बुन के बिच सुट देना सिखा के मरीदा को फाड़ फुड़ के, भाई वो तो शोभताबाजी था ना, वो कौन सा मुजद्दद होने का दावा कर रहा था या वली होने का या कुतुब गौस होने का या नबी होने का दावेदार था। वो तो एक शोभताबाज था सिकंदर पेशावरी। उसने कब दावा किया कि मैं मुझ पे आग नहीं असर करती क्योंकि मैं माज़अल्लाह नबी हूं या इस तरह का, तो उसका दावा नहीं था। उसने मिर्जा साहब को चैलेंज किया था कि आप जितने बड़े दावे कर रहे हैं मसीह वगैरह होने के, इमाम मेहदी और मुजद्दद और वगैरह होने के, नबी होने के, आप तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि जो नबी होने का मुद्दई होता है, जो अंबिया सच्चे होते हैं ना, वो हर मैदान में फाते होते हैं। भले कोई पहलवान उनको कहे ना मेरे साथ कुश्ती करे, वो पहलवान के साथ कुश्ती करना शुरू कर देते हैं और गिरा के दिखाते हैं। क्योंकि रूहुल कुदस की कुदसियत रूहुल कुदस की कुदसियत मुल्हम के तमाम। मैं ये कह रहा था कि जो नबी होता है उसके बारे में मिर्जा साहब का फतवा है कि रूहुल कुदस की कुदसियत मुल्हम के तमाम कुवा में काम कर रही होती है, यानी उसकी तमाम जो ताकतें हैं, बाजू की, मसल्स की, आंखों की, जुबान की, कानों की, दिमाग की, दिल की, हर जिस्म के हर उज़्व की ताकत, उसमें रूहुल कुदस की कुदसियत वो काम कर रही होती है। और पहलवान कहे ना उसको, नबी को, कि मेरे साथ आके कुश्ती करके दिखाओ, मैं तुम्हें नबी मान लूंगा अगर तुमने गिरा दिया, नबी उसको गिरा के दिखा देगा। अगर कोई शोभताबाज कहे कि मेरे साथ ये मुकाबला करके दिखाओ आग का, तो भी नबी पीछे नहीं हटता। तो ये असल बात ये है कि आपने कमजोरी तो अपनी दिखाई है। उनसे ये दो बातें पूछनी चाहिए थी कि भाई मिर्जा साहब, जो गुलाम मिर्जा साहब की कादियान में थी वो पेशावर में नहीं थी, लाहौर में नहीं हो सकती थी, लुधियाने में नहीं हो सकती थी, अमृतसर में नहीं हो सकती थी, बटाले नहीं हो सकती थी। वो कौन सी आग है जो कादियान में तो मिर्जा साहब की गुलाम है लेकिन कादियान से बाहर गुलाम नहीं है? मिर्जा साहब क्यों उसको बुलाते थे घर? उसका ये चैलेंज किताबों में छपा, रिसालों में छपा, मौलाना सनाउल अमृतसरी के रिसाला हदीस अमृतसर में छपा हुआ है, शेख पटालवी के रिसाला शातुस सुन्ना में छपा हुआ है, दीगर कई कुतब में उसका छपा हुआ है चैलेंज। खुद मिर्जा साहब ने अपना वो निशाने आसमानी या क्या किताब, अभी आप कौन से सफे से कौन सी किताब से पढ़ रहे थे? हम सीरत मादी से पढ़ रहे थे। सीरतुल मादी से पढ़ रहे। मिर्जा साहब ने खुद भी एक अपनी तहरीर से जवाब दिया हुआ है। सीरतुल मादी वाले तो झूठ बोला हुआ है, सीरतुल मादी वाले ने तो साथ अपना पंचर लगाया हुआ है। जाओ जाके मिर्जा साहब की बात खोल के देखो, निशाने आसमानी रिसाला है ना मिर्जा साहब का, उसमें होगा। कभी मौलवी नहीं मानता, मैं आपको दिखाता हूँ किस किताब में है। वहां पर तो मिर्जा साहब ने साफ हाथ खड़े कर दिए हैं। मिर्जा साहब ने वहां ये बात नहीं लिखी है जो सीरतुल मादी वाला झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात समझ गए? कोई नहीं, बात समझ में आ गई है। पीरस कहानी भाई से पूछ लें, उनको आइए कि नहीं? वो तो नमाज पढ़ने गए हैं ना, वो तो नहीं अब आएंगे 10-15 मिनट। वो बात आपकी सही है अपनी जगह पर, लेकिन हमारी बात ये थी कि जब यहाँ पर 2-3 कादियानी बशमूल नासिर कादियानी के बैठे हुए थे, उस वक्त प्रॉब्लम ये हो जाती है। आ रही है अली अहमद भैया, आप एक मिनट रुक जाएं, बल्कि आप बोल लें, आपका वक्त कम होता है, आप बोल लें पहले। सीटां ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੁਲਾਓ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਅਗਰਾਂ ਚੈਨਲ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੌਣ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਓਏ ਜਹਲਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਜਹਲਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਕਰਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। मिर्जा साहब दी आग गुलाम कादियान सी, कादियान तो बाहर क्यों नहीं सी गुलाम? की खतरा सी बाहर क्यों नहीं सी मिर्जा साहब का मुकाबला करते?
अच्छा जो बात हो रही थी ना इससे पहले अमन नज़ीर भाई, दूसरी बात कि ये जो बात सीरतुल मादी में लिखी हुई है, ये मिर्जा साहब ने खुद कही है बात। दोबारा पढ़े वो रवायत जरा खोल के। वो रवायत शुरता भाई मैंने सुनी नहीं पूरी। जी वो शुरदा भाई वो रिमायत को दोबारा पढ़ें। उधर मिर्जा साहब का ये कॉल भी नकल हुआ है कि उन्होंने बेसिकली, देखें हमने ये सारी बात पीरस खानी को बताई है, हमने यहाँ भी बताया है कि उसके अंदर बेसिकली 2 पंक्चर लगाए थे। एक हकीम नूरुद्दीन ने पंक्चर लगाया था। जब उसने ये बात कही ना तो हकीम नूरुद्दीन का पंक्चर रिपोर्टेड है मादी सीरत अल-मादी में कि उसने कहा था जी ये जो आतिश आग है ना ये मुखालिफत की आग है। पीरस खानी भाई ने वहीं पर रोक दिया। उसने कहा हाँ, बस रुक जाओ, ये तो मुखालिफत की आग की बात कर रहे हैं। फिर हमने उनको कायल किया कि भाईजान आगे तो पढ़ लें। आगे मिर्जा साहब खुद कह रहे हैं कि इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी, ये और इस तावील की क्या ज़रूरत थी। उस तावील को नापसंद फरमाया और ये फरमाया कि हम मौजूद है ना दुनिया में, हमें फेंक के देख लो आग में, ये बताया। लेकिन पीरस खानी भाई जो हैं वो आपको पता है जब उनकी एक दफ़ा कोई चीज़ फंस जाती है तो फिर वो उसे दुनिया के आखिरी दम तक, आखिरी कोने तक ले जाके छोड़ते हैं। तो वही आज हुआ है। नहीं, मैंने आपका भी रिएक्शन देखा। आप भी बदले में सिर्फ लड़ रहे थे ना, दलील से बात तो नहीं कर रहे थे ना। दलील से बात करें और उनसे पूछें कि भाई ये जो आग जिसका मिर्जा साहब कह रहे हैं कि वो गुलाम है, वो किन मानों में गुलाम है? हमें पूछते हैं नासिर साहब से, चौहान साहब से पूछते हैं, नासिर साहब से पूछते हैं किन मानों में गुलाम, वो मानी बयान करते किस तरह गुलाम है। हमारी भी गुलाम है कि सिर्फ मिर्जा साहब के गुलामों की गुलाम है? फर्क नासिर साहब तो मुकर ही गए ना। नासिर साहब कहते हैं मैं हकीम नूरुद्दीन साहब ने जो बात की है ना, जो तावील की है, मैं उसको मानता हूँ। क्या तवील की कि वो हकीम नूरुद्दीन कहते हैं ना ये मुखालफत की आग है। नहीं, वो सिकंदर पिशावरी जो है वो आग दूसरी लेके खड़ा था, पेट्रोल बोतल लेके खड़ा था कि मुखालफत आगे लेके खड़ा था। नहीं वही तो हम उसको बता रहे थे बार बार, लेकिन वो कहता है नहीं वो बज़िद था। और तारिक चौहान साहब भी बज़िद थे। हालांकि मुझे समझ नहीं आती, तारिक चौहान साहब तो मानते भी नहीं उस किताब को। वो बस आपको पता है ना बुग़्ज़ मुसलमानों में तारिक चौहान साहब भी कभी कभी शामिल हो जाते। जवाब तो सिकंदर पिशावरी को देना था ना, उसमें मुखालफत की आग कहाँ से आ गई है? जी आ गया जोसफ भट्टी, वेख लेंदा ना। और जोसफ साहब तो जो ना क्या सी मिर्जा साहब के पहाड़ तू चुक के इधर कर दो, मसीह अलैहिस्सलाम आख्या मेरे मुरीद जेडे ने वो पहाड़ नु हुक्म देंदे पहाड़ इधर उधर हो जाएगा, तो क्यों नहीं करके भाया अब्दुल्ला आतम होरां ने? हाँ ये गल बुरी है ना, करना चाहिए इस्लाम। हाँ तो मिर्जा साहब ने आख्या कि मसीह अलैहिस्सलाम कहंदे सी कि जेड़ा मेरा मुरीद होएगा वो तो पहाड़ नु कहेगा कि दूसरी जगह चल जा तो चल जाएगा। आहो वो तो ਉਹਦੇ ਚ उसमें था ना ये जंग मुकद्दस के अंदर ये वारदात की थी ना मिर्जा साहब ने। इसके अलावा भी मिर्जा साहब ने कहा था कि अगर मसीह के ईमान रखने वाले इतने ईमानदार हैं तो कुछ जूती तो सीधी जो है वो उल्टी जूती जो है वो सीधी करके दिखाए। वो मैं हवाला ढूंढ रहा हूँ, ये भी मिर्जा साहब ने एक दफा कहा था कि भाई को जुत्ती तो सीधी करके दिखाओ। ये अंजामे आतम में है मेरे ख्याल है। आहो मैं हवाला लभ लेना। तो की मुद्दा हुन की बनया है ते फिर जुत्ती सीधी कीती सी। जुत्ती सीधी मैनू कह मैं कर दियांगा, मिर्जा साहब नू ते जुत्ती भी नहीं सीधी पुट्ठी दा पता लगदा, लेकिन वो जुत्ती ते सीधी कर सकने आ। लेकिन मिर्जा साहब दी जेड़ी ख्वाहिश है ना मिर्जा साहब दी जुत्ती सीधी नहीं कर रही। जेड़ी मिर्जा साहब नू तो नहीं पता लगदा सी ना सीधी जुत्ती ते दूजी जुत्ती दा, वो तो सानू पता है। वो असल में खलीफा भाई ये देखें, ये चीजें जो होती हैं ना ये ईमान के ऊपर मुनहसर होती हैं। अब जो मसाया ने ये कहा ना कि भाई अगर आपके अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो आप पहाड़ से कहोगे इधर से हट के दूसरी तरफ जा लग, तो वो जा लगेगा। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जनाब अब हम पहाड़ों को उठा के और साइड पे करते रहें। जो काम हम हाथ से कर सकते हैं वो हाथ से हम कर लेते हैं। अगर किसी ने पहाड़ हटाना वो क्रेन लेके जाएगा, पहाड़ पट के दूजे पासे ला देगा। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ? ਜੁੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਵਹਾਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੁੱਤੀ ਸਿੱਧੀ करके वहा ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ है? अगर आप ये कहते हैं नहीं जी आप बोले और ये काम हो जाए तो ये आप खुदा को आजमा रहे हैं। ये बात जो है ये काबिल बर्दाश्त नहीं, इसकी तौरा मुखालफत करती है। हाँ कहीं आपको जरूरत पड़ती है तो फिर आप खुदा से ईमान रख के आप वो चीज मांगे और आपके काम होते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों का मतलब ये कि बड़े बड़े काम होना।
ये मतलब है उसका। वो मिर्जा साहब कहन के नहीं जी उन्होंने सच्ची मुच्ची दे पहाड़ हटा के वहाओ, तो ये मिर्जा साहब की कमकली है। तो मिर्जा साहब ने हुन की कहता है वो भी दसो ना फिर। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵਹਾਂਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਕਲਾਮ ਹੈ जो दूसरे कहते थे। जंगे मुकद्दस के अंदर शुरू के अंदर ही तो मिर्जा साहब ने खुद तो उंगली की थी अब्दुल्ला अदहम को कि नहीं जी नहीं, हम यहाँ पे कोई निशानी दिखाएंगे, कोई निशानी दिखाएंगे। अब्दुल्ला अदहम कह रहा था कि भाई हमें जरूरत नहीं है निशानी देखने की, या आप जंगे मुकद्दस शुरू पे पड़े वहीं पे ये सारा मामला मिल जाता है। 5 दिन मिर्जा साहब यही बात करते रहे हैं, सच्चा मजहब उसका है जिसके पास जिंदा निशान मौजूद है। जिंदा निशान जिसके पास है उसका मजहब सच्चा है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, आप भी बूढ़े हैं, दलाइल का क्या करना है? आप बाइबल से बातें पढ़ते रहें, मैं कुरान से पढ़ता रहूं, क्या फायदा है? मुख्तसर बात है, मुख्तसर। वो जिस तरह कल नहीं ठहरी बात, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का, वफा से देख लो जाता रहे गिला दिल का। कल कालू कहना है भाई वो तुसी ये दहा दो कि अल्लाह हजरत ने तखसीस की है ते मैं मान जाऊंगा। मैं कहा चल ठीक है, तैयार हो जाओ सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਛੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਤਖਸੀਸ ਵਹਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹੋ ਕੇ। यार मुझे याद आया वो ना हमारे एक मनाजर है बहुत बड़े मैथ्यू सुलेमान ना, अक्सर उनको ज्यादातर लोग जानते हैं जो मुस्लिम मसीही मकाल में देखते ना उनको जानते हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਡੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਦਾ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮਨਾਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡਾ ਮੁਰੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि जी जोसेफ साहब ने मैंने कहा है कि आप मुनाजरा करें, लेकिन मुनाजरा जो है वो मौजू ये होगा कि क्या मिर्जा गुलाम कादियानी अजरूए कुरान और अजरूए बाइबल एक सच्चा नबी है या नहीं है। अगो मीर लतीफ साहब हुण वेखो कह रहे हैं कि जी असी गल करनी है रसूल अल्लाह ते, असी मिर्जा कादियानी दे उत्ते गल नहीं करनी, हमने बात करनी है रसूल अल्लाह के ऊपर, इसके ऊपर आप मुनाजरा करें। उन्होंने फिर मैनू वीडियो कलाई तो मैं उन्होंने कहा कि इन्हों कहो ने कि बई अगर रसूल अल्लाह के उत्ते गल करनी है पैगंबरे इस्लाम ते, वो तो काम बनता है मुसलमानों का, तो तुसी ते मुसलमान है कोई नहीं हो, तुसी करो मिर्जा कादियानी दे उत्ते गल। उन्होंने फिर वीडियो बना के दी इन्हों कि बई मिर्जा साहब के उत्ते गल करो आओ कि क्या जरूए बाइबल ते जरूए कुरान मिर्जा जी की नबूवत सच्ची साबित होंदी कि नहीं। देखो की बनता है, उम्मीद है भी शायद हो जाए। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਈਏ 2-4, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਏ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪੇਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ? ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਆਨੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗਾ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਣ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਵਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉੱਤੇ ਬਰਾੜ ਲਾਈਏ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਸਾਡੇ ਹਲਾਮ ਦੇ ਭਜਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਾੜ ਲਾਈਏ, ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, 2 ਹਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਬਸ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬ
जब नया नबी आ जाए तो पुराने नबी का इलम नए नबी के जरिए मिलता है। तो मैं क्या उन्होंने कहूँ कि जनाब है जी विच दीवार लाई जे साडे ते रसूल अल्लाह ते पहला दीवार ते फिर सानू टप लैन दिओ। एक दीवार को सच्चा साबित करो तो फिर ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਮੋਰੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਮੋਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। तरतल्ली पै गई है या नहीं? नहीं तरथली तो पै गई थी, आप चले गए हैं तो हमने तो आपसे फैसला लेना था। ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵਾਲੀ वो जामिया आजम से लिखे हैं, वो काफी है। ਹਵਾਲਾ वो ਦੇ जामिया आजम च लिखे, वो जुत्ती वाला ते जामिया आजम च लिखे है ते दूजा जेड़ा हवाला है वो सीरत अल महदी दा पढ़ो जी। शुरता साहब केड़ा हवाला है वो? हाँ हमला ਹਵਾਲਾ ਪੜੋ ਜੀ ਅਗਲ मैं पढ़ देता जी नहीं, 1 मिनट मैं पढ़ देना, वो मेरे को लिख लिया थे। चलो पढ़ दो। हवाला जो हिस्सा अव्वल है दावा क्या है? दावा क्या है? दावा दावा और यार हर वक्त दावा नहीं होता, फिर इसका नहीं कोई शुगल बंद ले रहे हैं। 2 मिनट सबर करें। दावा बता दीजिए। मैं बस निकलने लगा भाई- मैं अब बहस करूंगा मैं अभी अस्सलाम मुझे वालेकुम। मुझे बात की है भाईजान ये जहूर को नज़ीर भाई किसने ने कहा उठाया? है, ये भारत तो पढ़ दे। ऐसे ही खामखा इसको उतार दो नीचे। तो मैंने उठाया, मैंने कहा अबे ये सुन तो ले हजरत खलीफा भाई वाला कभी का रखा हुआ है। वाला रिकॉर्ड पे आ दो। हाँ नहीं, सुबह का रखा हुआ है। अच्छा 1 मिनट, फिर इसका बाहर नहीं रखा म्यूट हुआ है, ना? शोर बहुत है। फिर इसका नहीं, एक शोर मिनट। आ रहा है, बंद कर ले, म्यूट कर ले। अच्छा हवाला ये है सीरत मादी हिस्सा अव्वल है, सफ़ा नंबर 136 है, रिवायत नंबर है 147। लिखते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान किया मुझसे चौधरी हाकिम अली साहब ने कि एक दफ़ा किसी हिंदू ने एतराज़ किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग किस तरह ठंडी हो गई। इस एतराज़ का जवाब हज़रत मौलवी साहब खलीफा अव्वल ने लिखा कि आग से जंग और अदावत की आग मुराद है। उन्हीं अय्याम में एक दिन हज़रत मसीह मऊद छोटी मस्जिद में बैठे हुए थे और हम लोग आपके पाँव दबा रहे थे और हज़रत मौलवी साहब भी पास बैठे थे कि किसी ने हज़रत साहब को ये एतराज़ और इसका जवाब जो मौलवी साहब ने लिखा था सुनाया। हज़रत साहब ने फरमाया इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है, हम मौजूद हैं, हमें कोई आग में डाल कर देख ले कि आग गुलजार हो जाती है या नहीं। खाकसार कहता है कि ये एतराज़ धर्मपाल आर्या मुर्तद अज़ इस्लाम ने किया था और हज़रत मौलवी साहब ने उसकी किताब तर्क इस्लाम के जवाब में नूरुद्दीन किताब लिखी थी। इसमें आपने ये जवाब दिया था कि आग से मुराद मुखालिफों की दुश्मनी की आग है, मगर हज़रत साहब तक ये बात पहुंची तो आपने इसको नापसंद फरमाया और फरमाया कि इस तावील की ज़रूरत नहीं, इस ज़माने में हम मौजूद हैं, हमें कोई मुखालिफ दुश्मनी से आग के अंदर डाल कर देख ले कि खुदा इस आग को ठंडा कर देता है कि नहीं। चुनाचे हज़रत मसीह मऊद ने एक दूसरे मौका पर इस मफ़हूम को अपने एक शेर में भी बयान फरमाया है, तेरे मकरों से ए जाहिल मेरा नुकसान नहीं हरगिज़, कि ये जहाँ आग में पड़कर सलामत आने वाली है। और आपका एक इल्हाम भी इस मफ़हूम को ज़ाहिर करता है जिसमें खुदा ताला आपसे फरमाता है कि तू लोगों से कह दे कि आग से हमें मत डराओ, आग हमारी ग़ुलाम बल्कि ग़ुलामों की ग़ुलाम है। खाकसार अर्ज़ करता है कि चौधरी हाकिम अली साहब ने इस ज़िक्र में ये वाक़या भी बयान किया कि एक दफ़ा किसी शख्स ने यह तमाशा दिखाना शुरू किया कि आग में घुस जाता था और आग इसे ज़रर ना पहुंचाती थी। इस शख्स ने मुखालफत के तौर पर हज़रत साहब का नाम लेकर कहा कि इनको मसीह होने का दावा है, अगर
सच्चे हैं तो यहाँ आ जावें और मेरे साथ आग में दाखिल हों। किसी शख्स ने ये बात बाहर से ख़त में मुझे लिखी और मैंने वो ख़त हज़रत साहब के सामने पेश किया। आपने फरमाया कि ये एक शोबदा है, हम तो वहाँ जा नहीं सकते, मगर आप लिख दो कि वो यहाँ आ जावे, फिर अगर मेरे सामने वो आग में दाखिल होगा तो ज़िंदा नहीं निकलेगा। चुनाचे मैंने आपका ये जवाब लिख दिया मगर वो नहीं आया। खाकसार अर्ज़ करता है कि नादान लोग बाज़ औक़ात ऐसी बातों से खुदाई कुदरत नुमायाँ के मुताल्लिक़ शकूक में मुब्तला हो जाते हैं, हालांकि खुदाई बातों में खुदाई जलवे होते हैं जो खुदा के चेहरा को ज़ाहिर करने वाले होते हैं। मगर इंसान ख्वाह अपने इल्म से क्या कुछ बना ले, मगर फिर भी हालात का मुतालिया करने वालों को इंसानी कामों में इंसान से बढ़कर कोई चेहरा नज़र नहीं आ सकता। चुनाचे बाज़ औक़ात एक ही बात होती है मगर वो खुदा की तरफ से आती है तो और शान रखती है, और इंसान की तरफ से आती है तो और शान रखती है। इसी मिसाल में ज़ाहिर हो रहा है कि किसी तरह खुदाई कुदरत नुमाई के सामने इंसानी तलस्म पर पानी फिर गया। मालूम होता है कि ये शख्स भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के शोबदाबाज़ों की तरह कोई शोबदा दिखाता होगा, मगर मसीह मौद पर इस मामले में खुदा का फजल मूसा से बढ़कर मालूम होता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्योंकि वहाँ तो इंसानी तिलिस्म को मिटाने के लिए मूसा को कुछ दिखाना पड़ा, और यहाँ सिर्फ दिखाने का नाम लेने पर ही तिलिस्म पाश हो गया और दुश्मन को सामने आने की जुर्रत ही ना हुई। फल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। यानी कि ये कहने का मकसद ये है कि मिर्जा साहब जो हैं अगर वो आग के अंदर चले जाएंगे तो मिर्जा साहब का तिक्का बोटी नहीं बनेगा, ये मतलब है ना इसका? जी हम तो यही मतलब समझे इसका। नहीं लग भी रहा है, हवाले से भी ऐसे ही लग रहा है। बहरहाल ये जो बात ये इसने आग वाली की है ना, ये भी बाइबल से ही चोरी की गई है। जनाबे दानियल को जो है वो आग के अंदर डाला गया था तो वो बच गए थे वहां से। नहीं ये जो उन्होंने बात वहां से चोरी नहीं की, कुरान मजीद के अंदर आयत है हज़रत इब्राहीम को अलैहिस्सलाम को जब उनके मुखालिफिन ने आग में डाला था तो वहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये कुरान मजीद में रिपोर्ट किया है कि अल्लाह ताला ने हाँ जी तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ए नार ठंडी हो जा सलामती वाली इब्राहीम के लिए। वो बाइबल में शायद दानियाल से रिलेटेड होगी, लेकिन कुरान में ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है, जिसका जिक्र इस हवाले के शुरू में किया भी गया है जी। यार थोड़ी बात किया करें, इतनी लंबी बात फिर बहस भी शुरू कर दें। बताएं आप इस सारी इबारत का, इसमें से 2-3 बातें 2-3 पॉइंट्स वो क्या है जो समझने लायक हैं। एक तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली आग का जिक्र है, एक सिकंदर पेशावरी का चैलेंज का जिक्र है। इन दोनों बातों से जो कुछ कंक्लूजन निकलता है वो बताएं। कंक्लूजन इसमें ये कि पहली बात तो ये कि मिर्जा साहब जो हैं वो दूसरों के जब ईमान का टेस्ट लेते हैं कि जनाब तुम जूती सीधी करके दिखाओ या मुर्दे जिंदा करके दिखाओ या अन्य जड़े ने उन्होंने अखियां दे के दिखाओ, तो फिर अब कादियानियों का भी ये फर्ज बनता है कि कादियानी जो है, चूंकि मिर्जा कादियानी कहता है कि हाँ आग हमें कुछ नहीं कहती, तो फिर कादियानी भी आग के अंदर कूद के दिखाए ना। नहीं उसको छोड़ो, वो नहीं बात, वो ठीक नहीं बात ये है पहले बात कर लें, फिर सिकंदर पेशावरी का बाद में जिक्र करें। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग का जब जिक्र हुआ तो हकीम नूरुद्दीन ने कहा कि वो मुखालफत की आग थी जिसमें उनको डाला गया और वो निकल आए, उनको आग ने छुआ तक नहीं। मिर्जा साहब ने कहा इस तवील की क्या जरूरत है, ये तवील है। बात समझ गए हैं? इस तवील की क्या जरूरत है, हम जिंदा मौजूद हैं, हमें आग में डालो, अगर हमें आग ने छुआ फिर कहना। ये है मिर्जा साहब के कहने का हकीकी आग, लकड़ी वाली आग, कोयले वाली आग। वो जो आग है जिसकी आप ये तवील कर रहे हैं कि वो मुखालफत की आग थी, उसकी कोई जरूरत नहीं, हमें डालो इस आग में। ये है मिर्जा साहब का दावा। क्या ये दुरुस्त है दावा? मैं सही समझाऊं? कोई बंदा आ जाता हूं जो मैं उन्होंने तो मसले खड़ा बंदा उत्ते चढ़ता ही कोई नहीं है। लेकिन ये जो बात आप बयान कर रहे हैं पीर असकानी भाई, यही तो बहस कर रहे थे कि नहीं ये बात भाईजान आप लोग
ज़बरदस्ती मत करो, ज़बरदस्ती का शैतान से कोई चीज़ आप लोग साबित नहीं कर सकते, याद रखना। हेलो मैं आया सांबो उसी मेरे आम तक उसी चंगा गोब को सुनना हो जो मैं आया 10 मिनट जाए मैं खामोश है हेलो सांबो ने नहीं क्या उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि आपकी इस बारे में क्या बात हुई। वो जो आग जिसके बारे में तवील कर रहे थे हाँ कि नूरदीन ने जो तवील की, मिर्जा साहब ने कहा उस तवील की जरूरत नहीं है, उस तवील की जरूरत नहीं है। जी मतलब क्या है, मुझे आग में डाल के देखो। हाँ, इसको मैं भी मानता हूँ ना, वो लिखा हुआ वैसे। असल बात, असल जो अड़ंगा है ना आमिर नज़ीर भाई, कि सही दावा हमारे भाई कर ही नहीं सकते। जब दावा साबित नहीं होता फिर जो है चिल्लाना शुरू कर देते हैं। फिर जब ये चिल्लाना शुरू करते हैं, काफ़ी सब्र करने के बाद मैं फिर जाहिल बोलना शुरू कर देता हूँ। ये इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। अब बात बिल्कुल इतनी सी है, सिंपल है। चंगेज खान है, ऊपर आके बताओ ना यार। वो मिर्जा साहब कह रहे हैं कि तवील करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जिंदा है, हमें आग में डाल के देखो। पीर इस्कानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, या हला या मरहबा। पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी कार्ड माशाल्लाह खुल गई है। ये देर तक नहीं जाएगी, मुबारकबाद मत दे दो, मुबारकबाद मत दीजिए, देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि 2 मरतबा मुझे मैसेज आया है कि तेरा ब्रॉड जो है यहाँ वायलेशन हो रही है। 2 मरतबा आया। अब देखो पीर साहब, आप ये गाना मस्त ज़रूर सुना करें कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली। लेकिन अभी वादा हुआ है, बस इतना वादा हुआ है, अगर इन्होंने ऐसा किया, एक तो खलीफा हैं, ये इनकी जो है ब्रॉड मेरे कब्ज़े में आ जाएगी, और एक शुरता साहब हैं, वो पहले से मेरे मोहसन हैं, उनकी ब्रॉड भी मेरे कब्ज़े में आएगी। ये दोनों, इनका ब्रॉड इनका नहीं। नासिर साहब भी आपको दे दिया है बात के। हाँ, उन नासिर साहब ने भी वादा किया है, लेकिन उन्होंने ब्रॉड देने का वादा नहीं किया, कहा कि हमारे पास आइए। हकीकत यह है कि आपके पास आप चला के रखे, ब्राड में अपनी दे दूंगा, ये चंगेज खान आईडी दे दूंगा, हम सुन लेंगे किसी और आईडी से भी, कोई मसला नहीं। आईडी बड़ी, आप बस ये है कि बातचीत जारी रखें, आपकी बातें सुन के कुछ हमें भी मिल जाता है, कुछ काफ़ी चीज़ें मिलता है। बस इतना है कि 2 वादा ले लिया है शुरता साहब से और खलीफा साहब से। मैं इनकी जान नहीं छोड़ूंगा, अगर कोई ऐसा बात हुआ दोनों के ब्रॉड पे कब्जा कर लूंगा, और अगर नहीं देंगे हर जगह जाके ऐलान करूंगा इन्होंने खयानत की। आप अभी ले लो, अपने कानून से मैं अपनी आईडी का नाम बदल के आपको कर देता हूँ, हिबा कर देता हूँ। मेरे भाई इतना गुस्सा ना करो, आप ले लो मेरी। नहीं, ये जो है ना, मेरी बात सुनिए, इस चीज़ के हम पीर साहब गवाह बन गए हैं कि काज़मी ने भी कह दिया कि मैं ब्राड दे दूंगा, और शुरता भाई ने भी कह दिया ब्राड दे दूंगा मैं अपनी। ये तो हमने सुन लिया। चलें, अब आप फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगी। वो तो मामूली बात है यार, ये तो मामूली बात है। मेरे पास 4-5 आईडी हैं 2-2 हज़ार वाली, वो मैं कोई भी दे दूंगा इनको सारी। मैं बस आपको ये मुबारकबाद देने के लिए ऊपर आया था, तो खुश रहे, आबाद रहे, ऐसे ही। नहीं, जवाब मुबारकबाद भी देना, अब जवाब भी तो दें, वो आग वाला जवाब तो दें। क्या हो गया, किधर जा रहे हैं, इधर रुके ना, जवाब तो दे के जाएं। हेलो, सर पे जूतियां रख के आते हैं, बात करके भाग जाते हैं। मोहतरम, मेरी ब्राड अभी से ले लें आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने पहले ही बताया है, बहुत शुक्रिया। नहीं कि मैंने कब्ज़ा करना है शुरता और खलीफा भाई पे, इनके ब्रॉडों पे कब्ज़ा करना है, फिर देखते हैं ये कैसे बंद करेंगे। जी जी, जारी रखिए, जारी रखिए, जारी रखिए। कहाँ चला गया राजपूत कुकड़ू, ये भाई हैं जी, जारी रखिए भाई, बात जारी रखिए, बढ़ाइए, कोई और स्कैन लाइए। क्या हुआ, किधर चला गया चंगेज खान? चंगेज खान आए थे मुबारकबाद देने के लिए, ब्रॉड खुल गई है, उनका शुक्रिया, क्या मैं मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ, और वो चले गए। आग का क्या किया जी? आग के बारे में कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं बताया, उसके बारे में कुछ नहीं बताया।
مجھے مرزا صاحب کون سی حالتی جس میں کہتے تھے کہ مجھے اس آگ میں ڈال دو. جی جی کسی کے دل کے آگ ہے کسی کے دل کے حال کو کیسے ہم جان سکتے ہیں بھائی؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں دل اس میں دل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. جی مرزا صاحب تو سامنے سمٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ طویل نہ کریں. اس طویل کی کیا ضرورت ہے؟ ہم موجود ہیں, ہمیں آگ میں ڈالو. جی جی آ کے کوئی میرا مخالف آ کر مجھے ڈالے, یہ تھی بات. مخالف گیا نہیں, یہ تو بات مریضوں کے سامنے کہی نا, مخالف کے سامنے کہی اس کو چلا جاتا. تو بس مخالف گئے ہی نہیں, وہ بات بنی ہی نہیں. مخالف بھائی جان, مخالف کو ایک بار خط لکھا تھا, کتاب میں ذکر کیا تھا ہاں کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری قادیان آئے تو صحیح جی پیشگیوں کی پڑتال کے لیے, کیا نتیجہ آیا تھا؟ جی جی وہ پیش کریں, وہ دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے. دعویٰ بول کے بالکل دعویٰ نوٹ کریں, ریکارڈ کریں, جی جی کاغذ لے کر ریکارڈ کریں کہ مخالف کو یہ چیلنج کیا مولوی ثناء اللہ امرتسری آئے قادیان میں ہاں ہماری پیشگوئی کی پڑتال کے لیے, جی ایک پیشگوئی پر 100 روپیہ دیں گے. ہاں 150 پیشگوئیاں نزول المسیح کتاب میں میں نے لکھی ہیں. 150 ضرب 100 1500 روپیہ بن جائے گا, 15,000 روپیہ بن جائے گا. یعنی 15 کروڑ کہہ سکتے ہیں اس زمانے کے حساب سے. آج کے حساب سے آپ جتنا مرضی لگا لیں, 15,000 روپیہ اس دور میں. اچھا جی کہتے ہیں کہ اگر وہ آئیں ہاں تو ایک پیشگوئی کے بدلے میں 100 روپیہ دیں گے. اچھا جب وہ آئے تو مرزا صاحب نے پیشگوئی کی پڑتال کا یہ طریقہ بتایا. پڑتال کا یہ طریقہ ہے کہ تم ایک سطر لکھو گے یا 2 سطریں, زیادہ سے زیادہ 3 سطر. تم کاغذ پر لکھو گے, منہ سے کچھ نہیں بولو گے, میں اس پر 1 گھنٹہ تقریر کروں گا. پھر جی اگر تم مطمئن نہیں ہوئے پھر تم 1-2 سطر لکھو گے, پھر میں 1 گھنٹہ بولوں گا اس پر. پھر بھی اگر تمہارا اطمینان نہیں ہوا تو یہ 3 دن سلسلہ رہے گا, اس کے بعد میں جیل میں چلا جاؤں گا. میری طریق ہے. یہ پیشگیوں کی پڑتال اس طرح ہونے کا اعلان کیا. اگر کوئی بندہ آ جاتا مخالف اور کہتا کہ مرزا صاحب آپ نے کہا ہے کہ آپ کو آگ میں پھینکا جائے تو میں آ گیا ہوں, تو اسی طرح کی شرطیں ہونی تھی آگ میں ڈالنے کے لیے. نہیں یہ تو بات نہیں ہو سکتا. یہ ہے دعویٰ ہمارا, نوٹ کر لیا آپ نے. میں 5 منٹ والا نہیں دعویٰ تو سمجھ دعویٰ آپ نے کیا ہی نہیں. آپ نے تو میرے بھائی ایک خلاصہ بیان کیا ہے. دعویٰ کیا ہے, اعتراض کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری کو کہا گیا کہ تم 1 سطر لکھو گے, میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا, یہ پیشگوئیوں کی پڑتال ہوگی اس طرح. تم منہ سے بول کر اعتراض نہیں کر سکتے پیشگوئیوں پر. اسی طرح سے اگر کوئی بندہ آ جاتا, اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مخالف آیا نہیں, کوئی آ جاتا ابھی مرزا صاحب کو آگ میں ڈالا جائے, جی آپ کے خیال میں مرزا صاحب کی کیا کیا شرطیں ہوتی؟ واللہ عالم, کیونکہ وہ آیا نہیں کوئی. نہیں, جس طرح کی پیشگیوں کی پڑتال کروانا چاہتے تھے اس پیٹرن کو, اس نمونے کو سامنے رکھیں اگر, تو کیا شرطیں ہونی چاہیے مرزا صاحب کی؟ بھائی ظاہری بات ہے کسی بھی چیز کو عمل میں لانے کے لیے وہاں کچھ شرائط تو ہوتے ہیں. ہاں ایسا نہیں کہ آئے گھر میں بیٹھے ہوئے سیدھا جو ہے آگ میں ڈال دیا, ایسا تو ممکن نہیں. یہ شرط کیسی ہے کہ تم 1 سطر لکھو گے, میں 1 گھنٹہ تقریر کر, کیسی شرط ہے بھائی؟ شروط دونوں طرفین آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, طرفین کے مفاہمت سے, رضامندی سے, اگر مفاہمت ہو گیا, دونوں نے رضامندی ظاہر کی, تب اس پہ عمل ہوگا. اگر آپ کو قبول ہی نہیں ہے تو جاؤ نصر راپو. یہ شرط کون قبول کرے گا؟ یہ شرط کون قبول کرے گا پیرس خانی بھائی؟ بھجن نہیں کرے گا تو وہ نہیں کیا نا, نہیں کرے گا تو نہیں کیا. مطلب یہ شرط ہے ہی نہیں نا کوئی انسانوں والی شرط یا غیر جانبداری, مطلب کوئی انصاف ہے اس میں, اس بات میں کوئی عدل پایا جاتا ہے؟ نہیں, وہ تو سامنے ہمارے آ جائے گی, معلوم ہو جائے گا کہ انصاف ہے یا نہیں. وہ پورا متن میرے سامنے آ جائے گا تو تب دیکھا جائے گا. آپ یہ کہیں کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ شروط جو ہے کوئی قابل قبول یا کوئی اس میں زیادتی ہے, یعنی اس سے شرمناک کچھ بھی کہیں, تو آپ کا یہ دعویٰ ہونا چاہیے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے
कि जैसा ये हो गया वैसा वो होगा। नहीं, ऐसा एक इस तरीके से देखकर बंदे के मिजाज का पता तो चल जाता है ना कि जो बंदा यहाँ पर इस तरह की शर्तें लगा रहा है, जी। अगर उसके पास कोई बंदा आ जाता कि चलो जी आपने कहा है आग में डालना तो मैं आपको आग में डालने के लिए आ गया हूँ, क्या आपका क्या ख्याल है? इस तरह की शर्त नहीं रखेगा बंदा? नहीं, ये हम कह नहीं सकते कि किसी के साथ कौन से शुरूत होंगे। वो मौके और मौजू को देख कर ही वो शुरूत वैसे ही तय पा जाते हैं। हर मसले का एक ही शुरूत नहीं होता है ना भाई। नहीं, मौका माल की निस्बत से एक जो है होता है दौड़ का शर्त, एक होता है कुश्ती के शुरूत, एक होते हैं जो है इमला लिखने की शुरूत, एक होते हैं किसी मौजू पे शुरूत। ये शुरूत उस हिसाब से उस चीज़ को, उस मसले को देखकर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, मैं 5 मिनट बाद आया। अच्छा, वो मतन हमें चाहिए। खलीफा साहब, लत्तां दी पार पाके वो मतन का जो इशारा किया जा रहा है ज़रा पेश कीजिए। कौन सा वाला मतन भाई? ये कौन है? ये मेरा बेटा है। हाँ, माशाल्लाह 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 खलीफा वक्त भाई, माशाल्लाह। खलीफा वक्त भाई जी आबिद भाई। जी, ये जिल्द 19 है, सफ़ा नंबर 148 है। ये फिरोज खानी भी, आपके पीछे शोर बहुत ज़्यादा है, आबिद भाई की आवाज़ नहीं आ रही, आपके पीछे काफ़ी शोर है। साहब आपके पीछे इतना शोर क्यों आता है, क्या वजह, कहाँ हैं आप? खलीफा वक्त भाई, जिल्द 19 सफ़ा नंबर 148 मैं अभी पेश कर देता हूँ। है जी। ये अस्कानी साहब को भेज दे। आपने कहा शोर का है मेरे पीछे। असल में माइक्रोफोन जब मैं लगा लेता हूँ, शायद वो वायर ख़राब है, उसमें शोर आती है। अब नहीं आ रही है ना मलिक साहब? अब नहीं आ रही। हाँ, ये वायर ख़राब है, तो मैं इसको जब निकाल देता हूँ कोई शोर नहीं। आप तो बिल्कुल सफ़ा ठीक आ रही 148 है ना, जिल्द 19 सफ़ा 148। जी जी। अच्छा भाई, हमारे 19 सफ़ा 148 एजाज़े अहमदी ज़मीमा नज़ुल मसीह। अच्छा भाई, हमारे बहुत ही बेहतरीन शख्सियत, अच्छे गुफ्तार के मालिक, हमारे दोस्त मोहम्मद सुहेल साहब, खुश आमदीद। आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे वहाबी, दियोबंदी, बरेलवी, अहले तशी मुसलमानों ते इजमाए उम्मत मुस्लिमा दी खिदमत में नहायत ही मोहब्बत भरा सलाम अर्ज़ जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आबिद भाई, जिल्द नंबर 19 बताइए आपने। अच्छा पीर साहब, वैसे मैं सुबह से आपकी माशाल्लाह गुफ्तगू सुन रहा था। एक मिनट, मैं दोबारा पीर साहब, एक तो पहली बात आपको मुबारक हो जी, आपका माशाल्लाह एक नए सफ़र का आगाज़ शुरू हो गया। अल्लाह मियां इस सफ़र को ज़्यादा देर तक कायम रखे। आपकी ब्रॉड को हमें सुनने का मौका बार बार मिलता रहे, कोई ब्रेक ना रहे, क्योंकि जिस दिन आपकी ब्रॉड बंद हो जाती है ना, तो हमारे दिलों पे बड़ी छुरियाँ में हमारा दिन गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हम आपकी ब्रॉड की कामयाबी की दुआ आपके लिए नहीं कर रहे, बल्कि अपने लिए कर रहे हैं। हमारा दिन जो है उससे ज़रा एक अच्छा और अच्छी बातें कानों में पड़ती हैं, तो हमारा दिन ज़रा अच्छा हो जाता है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात बता दे, ये काजी यार मोहम्मद कौन था? ये आपको बाद में बताएंगे। पहले आप यार, जो आपने 2 सफ़े वाली कॉपी लिखी है ना मलिक कैसर साहब, पहले आप उससे बाहर आ जाओ। मैं दूसरी किताब, दूसरी लाइव पे ना मुनाजरा कर रहा हूँ, तो मुझे भूल गया। मैंने कहा चलो किसी का नहीं, आप जाओ, आपको बता देंगे, वो कोई मसला नहीं। अच्छा पीर साहब, वैसे ना आप इनके जरा डबल स्टैंडर्ड्स का अंदाजा लगाएं। हमारी किताबें जो है, काजी यार मोहम्मद कौन था? हमारी किताबों पे इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, और ये अपने पर्चियां ले लेके जो है ना यार उसका... मैं मुनाजरा हार जाऊंगा, मुझे बता दो भाई प्लीज। आपकी नहीं, आपको हम जिता देंगे, टेंशन ना लो। आप तो बता दें। आपने जो 2 सफ़े वाली कॉपी लिखी है ना, वही बहुत है। आप हर जगह जाके वो पढ़ लिया करो। एक मिनट मुझे अगला बंदा बता आपको तो खुद ही कह देगा। यार, एक मिनट बता दें भाई, क्या हो गया?
अच्छा यार पीर साहब, पहले इन्हां दी गुफ्तगू करा लो। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो मैं अपने नबी की तालीम पर अमल करते हुए सब्र करता हूँ जी। आप लोग पहले गुफ्तगू कर लो। सबर से 1 मिनट के लिए बता दे मेरे भाई, 1 सेकंड लगेगा क्या? इसमें कितनी देर लग जाएगी? कोई पता नहीं यार, तकरीर करने आ जाते हैं, फिल्म है कोई नहीं। किसी और भाई को पता हो तो यार मुझे व्हाट्सएप कर देना प्लीज यार। आपने ये नहीं बताया काजी यार मोहम्मद कौन था? पता नहीं यार, मैं इधर वो कह रहे हैं कि काजी यार मोहम्मद कौन था जी, आपको पता ही नहीं है। दूसरी ब्राड पे आपने देखा है ना अभी यूसुफ भाई? जी मैंने नहीं देखा। देखा, अब मैं आपको शेयर कर रहा था। जी खलीफा वक्त भाई, सफ़ा नंबर 148 है, जिल्द 19। मैंने भेज दिया। नहीं मैं मलक साहब सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। सोहेल साहब आप अपनी बात, सोहेल भाई पीर साहब, मैं वैसे बात शुरू करने लगा था तो बीच में कुछ 2-4 मिनट बाद ही मुझे रोक दिया गया था, बात ही मुकम्मल नहीं हो पाई। मैंने कहा मेरे लिए तो कोई मसला नहीं, हमें तो सब्र करने की तलकीन है। हमारे प्यारे नबी इमामुल अंबिया ने हमें समझाई ये बात कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह हमेशा साथ देता है, तो हम तो उस तालीम पे अमल कर रहे थे। अच्छा पीर साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि डबल स्टैंडर्ड्स की मैं बात कर रहा था। ये हमारी किताबों की पर्चियाँ जो है वो ले लेके घूम रहे होते हैं जेबों में। आप मैंने आपको पहले भी ये मशवरा दिया था कि आप यूट्यूब पे ना हमारे ख़िलाफ़ जो भी उलमा कराम ने हमारे ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दिए ना, आप पहले उनका ज़रा बखूबी जायज़ा लें, तो उससे आपका जो है ना काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। उसमें उनके जो इनके उलमाए जो हमारे शदीद तरीन मुखालिफ हैं, वो ये बात कहने पे मजबूर हो गए थे कि मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी तक तो चलो ठीक है, जो हमारी जमात में शामिल हो गए तो हो गए, लेकिन उसके बाद जो हमारी जमात ने तरक्की की है वो मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ पढ़ के ही, उनके जो है किताबें पढ़कर ही जो है ना हमारी जमात में बहुत ज़्यादा लोगों ने शमूलियत अख्तियार की। इनमें अगर इतना दम खम है तो पाबंदियाँ हटवाएं हमारे ऊपर से और हमें सरेआम चौक पे हमारे बिल्कुल तो सही। पहले अब आप आपके इनसे ये भी मुतालबा यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं, आप बोले जितना बोलना है, लेकिन आपने मुझे बताना है कि काजी यार मोहम्मद था कौन। तो इनसे आप जरा एक मुतालबा ये भी किया करें ना कि यार तुम लोगों ने उनकी आवाज़ बंद की हुई है, हाथ पैर उनके बांधे में हैं, तो उसके बाद तुम जो है उनसे मुतालबे भी करते हो कि जी अपनी सच्चाइयाँ साबित करो। ये कैसे मुमकिन है कि जी हर तरह से जुबान बंदी करने के बाद जो है अगर इनमें दमखम है। और नासिर भाई ये भी बताइएगा कि आपने मिर्ज़ा साहब की सारी किताबें कितनी बार पढ़ी हैं, ये भी बताइएगा ज़रा। तो भाई मैं तो अपनी इल्मी काबिलियत सबको बता चुका हूँ, चिट्टा अनपढ़ हूँ मैं, तो कोई इल्मी शख्सियत होने का दावा ही कोई नहीं करता। लेकिन मेरे जो वालिद तो साहब हैं या जो किसी को जो पढ़ा होता, जो कोई घर में आपके कोई बहन भाई या बेटी, तो उनको कहते कि भाई मुझे पढ़ के सुना दो, ऐसा तो सुन सकते हैं ना। ये ऐसा है कि आज पूछना अपने घर वालों से ना, अबू से पूछना काजी यार मोहम्मद कौन था, उन्हें पता होगा। अबू हैं आपके? अल्लाह के फजल से माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह ने अम्मी भी बड़ा है। अल्लाह के फजल से। बस पूछना अम्मी अबू को बिठा के ना, और उनसे नमाज का खुशू खुशू भी पूछना कि नमाज में मेरा दिल नहीं लगता तो कैसे मैं दिल लगाऊं। मिर्ज़ा साहब की ठीक है किताब जी। से मुझे बता। अच्छा मैं वैसे सारी दुनिया को पता ही है, इतना अरसा हो गया कि मेरे वालिद साहब इंतहाई एक कट्टर किस्म के अहले सुन्नत के थे, वो किताबें पढ़ के ही जमात में शमूलियत इख्तियार की। अच्छा उनसे फिर उन्हें पता होगा, उन्हें फोन करे, उन्हें पूछे उनको हर काजी यार चीज पता मोहम्मद है, उनको ये भी पता है कि ये जो है वो इस्लाम से निकल के अच्छे इस्लाम में, पाकीज़ा इस्लाम में, इलाही जमात में, इलाही इस्लाम में दाखिल हो गए। उनसे ये भी पूछना कि ये कौन सा पाकीज़ा इस्लाम है जिसमें अपनी बेटी के साथ जना करो और फिर उसकी वीडियो यूट्यूब पे आ जाए। ये पूछना, ये पाकीज़ा इस्लाम आपने कहाँ से ली है। आज अपने अब्बू से पूछना, अम्मी से भी पूछना कि वो जो मलिक भाई हाँ जी, ऐसा मत कीजिए। देखिए मैं तो कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो वही बात कर रहा पीर हूँ। साहब ऐसा मत कीजिए मलिक भाई। देखिए ये पाकीज़ा, अच्छा पीर साहब, ये पाकीज़ा इस्लाम में अपनी बेटी के साथ जना करना क्या इन्होंने नहीं किया? क्या उसकी वीडियो मौजूद नहीं है यूट्यूब के ऊपर? अच्छा भाई नहीं ऐसा मत कीजिए प्लीज। हाँ तो वो कह रहा है मैं पाकीज़ा इस्लाम में आया हूँ, तो पाकीज़ा इस्लाम ये होता है? उनको कहने दीजिए।
बदकारियाँ तो आपने भगा ही दिया उसको। नहीं आपने ऐसे किया तो उससे पूछ लेता ना कि पाकीज़ा इस्लाम ये होता है कि जनाब खलीफा की नवासी के साथ नो जना करते उसको रहो, कौन कहता है और फिर भाई? उसे कहो वो- और फिर उस उसे कहो चीज़ वो को तौबा भी नहीं कर ली है। मानते, उस चीज़ को हम भी नहीं मानते, उनको कोई भी नहीं मानता, लेकिन इस तरह के काम ये इनको वाबस्ता नहीं किया जाए, छोड़ फिर दो। ये ना कि आप जी पाकीज़ा उस्ताद इस्लाम में आ मोहतरम, गए, तुम आपको एक जिंदे इस्लाम। हवाला भेजा है। हाँ अब वैसी नज़ीर बात साहब करेंगे, आओ। वैसे जवाब ले लेंगे। हाँ मैं आ गया हूँ। क्या क्या बात कर रहे हो? नहीं वो दिल लगी साहब ने बड़े दिलचस्प आदमी है मलिक साहब, लेकिन कभी कभार जो है किसी अमल के रद्द अमल में कुछ होता है, चलेगा, ठीक है, हल्की फुल्की बात होगी। अच्छा मलिक साहब, वैसे ये जो आपने पेश किया ना खुशू और खुदू, हाँ जी, इसमें क्या है, क्या कोई ऐसी बात है जिससे वाक़ईतन गलत हो? ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताब में लिखा हुआ है, कल मुफ्ती साहब ने पढ़ के सुनाया। नहीं पहले तो आप पीर साहब से पहले पूछना खुशू फिर खुशू अफगानी किसको भाई। कहते हैं नमाज अच्छा, में? फिर अफगानी भाई, खुशू किसको कहते हैं? भाईजान एक मिनट, अगर आपको मैं मिर्ज़ा साहब की अरबी की इबारत भेजूं तो आप उसका तर्जमा करें। मुझे खुद नहीं पता, उसका तर्जमा नहीं आता मुझे। सुनाएंगे जरा पढ़ के? हाँ पहले हम देखेंगे जो आपने इबारत पेश की है उसको ना देख लें पहले, उसमें क्या है? नहीं वो भी देख लेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें मिर्ज़ा साहब ने क्या बात कही है। ये उसी मौजू पर है, उसी मौजू पर है। जब मौलाना सनाउल अमृतसरी आए थे ना कादियाना, तो जो मिर्ज़ा साहब ने खत लिखा था उसको खुद मिर्ज़ा साहब ने अरबी में ट्रांसलेट किया है। जो मौलाना सनाउल अमृतसरी को लिखा था, तर्जमा इला सनाउल अमृतसरी इज़ जा कादियान व तलब रफ़ा शुबहात बात शिन फरी। एक मिनट मैं आपको भेजता हूँ यहाँ पे। भाईजान ये कौन है? ब्रिंग स्टार है, पता नहीं बिग स्टार है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे साहब क्या हाल है? दोस्त ठीक ठाक है? खैरियत अल्लाह से? का करम, अल्लाह का करम। अच्छा, वो बात कर रहे थे खुशू खुशू के हवाले से, तो मैंने सुना है कि सूरत अल-मुमिनून की जो इन्होंने तफसीर की है ना मिर्ज़ा कादियानी साहब ने, तो उसमें बड़ी अजीब सी मिसाल उन्होंने पेश की है वहाँ पे। और उसमें उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे अगर आप ज़ना करते हैं उस पे, तो अगर आप ज़ना करते हैं तो आप बच्चा पैदा नहीं करना चाहते तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर आप शादी करते हैं किसी से निकाह करके, तो आप फिर उससे बच्चा पैदा करते हैं और वो जो औलाद पैदा होती है, जब औलाद होती है तो ये तो क्या फ़ायदा हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर नमाज के अंदर खुशू है तो उसका नतीजा निकलेगा जैसे कि आप मुबाशरत करते हैं अपनी बीवी से, तो उससे बेटा या बेटी होती है, औलाद होती है। और अगर खुशू नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप किसी से ज़ना करते हैं लेकिन बच्चा नहीं चाहते उसमें से। तो ऐसी करके कि उन्होंने की उसकी तशरीह की है, तफसीर की है। तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैंने ये सुना है, एक मनाज़र के मुझे सुना था। बेटा या बेटी होती है, औलाद होती है, और अगर खुशू नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप किसी से ज़ना करते हैं लेकिन बच्चा नहीं चाहते उसमें से। तो ऐसी करके कि उन्होंने की उसकी तशरीह की है, तफसीर की है। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई? हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही? मेरा ख्याल लेट हो गई है आवाज़। अब ठीक हो गया। जी, मैं दोबारा वजाहत करूं या बात चली गई थी? जी ब्राइट स्टार भाई, जी ब्राइट स्टार भाई, जो आप ये बीच में कह रहे हैं ना कि बच्चा पैदा हो या ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ पे लिखा हुआ। वहाँ पे सीधा सीधा बात लिखी हुई है कि जैसे तस्कीन बंदे को
जब वो मुबाशरत करता है, फारग होता है, तो उसको मिलती है, ऐसे ही नमाज, यानी कि इस किस्म की तशबीह दी हुई है। बच्चे वगैरह की वहाँ पे कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मैंने चूंकि से मुनाज़र से सुना था तो इसलिए जो मुझे समझ आई वो मैंने वही बयान की है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फिर आपको ज्यादा इल्म होगा इस बारे में। ये बड़ी स्क्रीन पे करेंगे मुझे ये आप बड़े स्क्रीन पे हैं लेकिन आपका नेट ठीक नहीं है, लाल शो रहा है मेरे भाई, आपका इंटरनेट ठीक नहीं है। हो गया। भाईजान वो फिर किसी ने रिपोर्ट की, कौन है ये? आमिर रजी साहब, फिर रिपोर्टिंग चल रही है, कौन है ये? आलम कौन रिपोर्टिंग कर रहा है? लाइक करें और शेयर करें। ये सिर्फ 909 लाइक्स हुए हैं अभी तक। भाईजान मसला प्लीज क्या है कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज। दो डबल एक साथ आ गया, डबल एक साथ आ गया। भाईजान ये ऊपर आके ब्रेज स्टार ने तो नहीं किया कहीं? किसने? हाँ भाई, ये ब्रेज नहीं वो नहीं पीर साहब, जरूरी नहीं है कि ऊपर आके करे, नीचे से भी लोग करते हैं। और इसका बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा डबल टैप करते रहे, डबल टैप करें, सारे डबल टैप करें। डबल आ गया था, सारे डबल टैप करें प्लीज सब कीजिए। भाईजान ये क्या मुसीबत डाली हुई है लोगों ने, अल्लाह ने इस दफा बंद हो गया ना, तुम सबको मैं गालियां दूंगा, गालियां नंगे नंगे चुन चुन के गालियां दूंगा।